Okay, so the trends of ionization energies across periods. This is period 2 drawn. Lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, and neon 10. So the first dip was between beryllium and boron. और हमने कल इसको डिस्कस किया था कि for what reason, although generally ionization energy should increase from left to right, and it is increasing. A general trend is, look at the line, go straight. Only two of the elements, boron and oxygen, are trend breakers, pattern breakers. और जो फर्स्ट पैटर्न ब्रेकर है बोरॉन, ये आपने अभी शुरू किया एक्सप्लेन करना इसका भी? हाँ अभी मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है ना, मैं दोबारा बताता हूँ। वी आर ऑलवेज नॉट एनी हरी, इसलिए आप कभी भी किसी चीज को रिपीट करने को कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस ए लेवल्स कभी भी हरी में नहीं हो सकता। बहुत कूल होके करते हैं और फिर और बड़े टाइम पे फिनिश हो जाता है, कभी भी ऐसा नहीं है। सो डोंट वरी। So we are starting trends of ionization energy, trends of first ionization energy across periods. This is first ionization energy across periods. और जो कल हमने डिस्कशन की थी पीरियड 1 की भी, हाइड्रोजन हीलियम, देयर वाज अ इंक्रीज डेफिनेटली फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम, नो डिप, दो ही तो एलिमेंट्स थे। बट पीरियड 2 जो है फ्रॉम लिथियम टू नियॉन पे जाता है, पीरियड 2 आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें दो डिप्स आते हैं। फर्स्ट इज बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन एंड सेकंड इज बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो फर्स्ट डिप कल हमने डिस्कस किया था, सेकंड का मैंने जो स्पिन पेयर का आइडिया दिया। ऑल्दो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि प्रोटॉन नंबर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, so proton numbers increasing mean nuclear force obviously increasing, so the ionization energy should increase, and it increased for all other elements except boron and oxygen. There is a dip seen, and that is an explanation that was done yesterday, that beryllium's electron is removed from comparatively closer shell which has only one shield of 1s2. But boron's proton number is 5, so it's 2p1. Its electron is in p. beryllium का जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, beryllium का प्रोटॉन नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है। beryllium का जो इलेक्ट्रॉन है that is from 2s, but boron's proton number is 5, so its last electron is in 2p. So 2p has more cores of shielding effect, better shielding effect, and we know that energetically block diagrams में हमने देखा p is at a higher energy, so that can be the only explanation to overcome the increased nuclear charge or to overcome the increased proton number. That's why there is a dip. Okay, और जो हमारा second dip है, that is between basically, the second dip is between nitrogen and oxygen. अगर आपके सामने पीरियड 3 बनाऊं तो पीरियड 3 में भी आपको सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, argon 18. So it is magnesium, sorry, we start with sodium. Period 3 start with sodium. It is sodium, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, क्लोरीन 17, argon 18. तो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम पे भी डिप है, सेकंड एलिमेंट के बाद डिप है, और यहाँ पे भी आपको पीरियड 2 में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम पे सेकंड एलिमेंट पे डिप है। सेम एक्सप्लेनेशन, मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर इज 12, so it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. But aluminum's proton number is 13. It is 1s2, 2s2, 2p6, and there is 3s2, 3p1. Although proton number aluminum का 13 है, लेकिन डिप आया है आयनाइजेशन एनर्जी में राइज होने के बजाय, तो उसका वही एक्सप्लेनेशन है कि its electron is removed from 3p, just like 2p of the boron,
and 3p's electron that has to be removed is better shielded even by 3s2, 2p6, 2s2 and 1s2. सर Mean तो इसकी shielding. रीजन जी, इसकी रीजन ये होगी जो जिनका डिप नहीं आता वो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग वो जिन जिन एलिमेंट्स का डिप नहीं आता दैट डिपेंड्स उनकी शील्डिंग इफेक्ट की स्ट्रेंथ पे, और जिसकी शील्डिंग इफेक्ट की स्ट्रेंथ वीक होगी उस एलिमेंट पे डिप आता है। की हेलो शील्डिंग इफेक्ट की स्ट्रेंथ, जिसकी शील्डिंग इफेक्ट की जी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है हाँ, ना। तो उस पे डिप नहीं आएगा, जिसकी वीक होगी उस पे उस शील्डिंग। नहीं, उस पे डिप आएगा शील्डिंग इफेक्ट जिस पे ज्यादा है। आप हाँ जी एल्यूमिनियम अगर देखें तो एल्यूमिनियम इज बीइंग शील्डेड मोर, शील्डेड मीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वर्ड शील्ड मीन व्हाट? प्रोटेक्टेड। हम्म And why it is shielded? Because it has more inner line cores, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. It means repulsion between these is more, and 3p goes at a higher distance. Is it? Higher energy. And that is the reason it is well protected. So a dip has come. तो But जिसकी dip स्ट्रेंथ किसी, ज्यादा जी जी हाँ आप देखिए बाकियों में तो किसी में भी डिप नहीं आ रहा। फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम देर इज इंक्रीज। आपसे इवन पास पेपर्स में मैंने ये भी क्वेश्चन भी देखते हैं, देखे हैं, वो कहता है व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम। तो हम कहते हैं बिकॉज मैग्नीशियम हैज मोर प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू सोडियम 11। Magnesium nuclear force is more as compared to sodium. Both got the same number of shells, but two shells of magnesium are more tightened towards the nucleus because of the increased proton number. That is why magnesium's electron needs higher energy as compared to sodium to be removed. पूछे मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे डिप क्यों आया है, प्रोटॉन नंबर को यहाँ क्या हो गया, तो हमारे पास जाहिर एक्सपेरिमेंटल डाटा था, तो यही एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि although the proton number has increased, proton number तो इंक्रीज हुआ